Okay, we are now going to start with a new chapter, that is mensuration. Now, mensuration here means measuring or computation. Computation of area, volume, comparison of areas or comparison of volume, or measuring in short. So let us, before we enter into mensuration, we need to understand few concepts like what is a cube, what are the dimensions of the cube, what is the volume, area of the cube, what is a cuboid, what is a sphere, what is a cone, what is a cylinder, etc. So let us start. I will start with cuboid. What is a cuboid? It's a three-dimensional figure. I'll draw it for you here. This is a cuboid. This is length, this is breadth, and this is height. So now what are we going to measure in this chapter? We are going to first of all see these are dimensions, so length, breadth and height is dimension. Dimension matlab measurements of length, breadth and height of a solid figure. Now we have two areas that we are going to calculate. One is total surface area, entire surface area. Now please see here how many faces this cuboid has. It has one face that facing us. There is this one, back two, this is three, this is four. The upper one is 5 and below one is 6. Total 6 faces. Okay? So, total surface area, I call it ST. Total surface area. That means we add all the areas of 6 faces. Now every face here is a rectangle. Please see. L into B, there is below one. The below one and upper one, floor and roof, both have same surface area. So it will be 2 LB, 2 length into breadth. Plus, look at right hand side face and left hand side. Both have equal area. So it will be, again this is a rectangle. So B into H, 1 and 2. 2 BH plus. What about the face looking at us and behind? So it is L into H, 2 times LH. So in short, 2 common nikalo, so it will be LB plus BH plus LH. This is total surface area of a cuboid. Now, area of vertical faces or lateral एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस मतलब ऐसे खड़े, ओके, 4 फेसेस हैं, एक साइड इस साइड, उस साइड, लेफ्ट एंड राइट. सो दे आर 4. इन शॉर्ट हम रूम में जिस खड़े हैं ना, इस रूम की वॉल्स, यहाँ ये 2 वॉल है और आगे पीछे 2 वॉल है. सो
एरिया ऑफ द वर्टिकल स्टैंडिंग फेसेस, तो वो क्या है देखो, ये L इंटू बी और L इंटू एच, 2LB प्लस 2LH, इसमें 2L कॉमन है, 2 कॉमन है और L कॉमन है, तो ये क्या होगा B इंटू एच. What is 2BH? What is 2 into bracket B plus H into L? It is perimeter of base into L. So it is perimeter. So this perimeter of rectangle into, so it's a perimeter of a rectangle, 2 length, 2 base, 2B plus 2H is perimeter of rectangle into length. दूसरा ये है वॉल्यूम, volume of cuboid is length into breadth into height. This will be centimeter cube and all this will be nothing but centimeter square. ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, but this will be cube, cubic centimeters. Okay. ये क्यूबॉइड है. अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं बिकॉज हमें इसके सबका फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो आई विल राइट हियर ST मतलब टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH. उसके बाद एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस और सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस विल बी 2 into bracket 2 into bracket L plus B बराबर ना BH और LH. LH plus 2BH L plus B into H बराबर 2L plus B into H. ये आपका हो गया एरिया ऑफ द लैटरल फेसेस और सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम है L इंटू B इंटू H. अब आते हैं क्यूब पे. नेक्स्ट इज क्यूब. नाउ इन दिस क्यूब में क्या होता है याद रखो, इन द क्यूब what we'll have is all the in cube, this will be length, this also will be, H also will be equal to length of, all sides are equal. So what will be ST? Please understand, इसका ही फॉर्मूला इस्तेमाल करो 2, this will L into B,
but L is equal to B equal to H in cube. So it will be L square प्लस वो भी B इंटू H है ना, तो ये L इंटू L होगा, ये भी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तीनों L स्क्वायर. So this will be 2 into 3L square. So it will be 6 into area of the face. 6 faces हैं, तो ये total surface area 6L square. Surface area of the vertical faces or lateral faces क्या होगा, ये 2L plus B is nothing but L only, and this also is L. So it will be 2 into 2L into L. It will be 4L square. 6 फेसेस है, वर्टिकल फेस के लिए 4 है. नीचे फ्लोर और रूफ का फुल जाए. वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ. वॉल्यूम विल बी length into breadth into height. So, but breadth is nothing but again length, and height is also is L. So this is L cube. तो ये हो गया आपका cube. So we have completed. और आगे आ रहे हैं, पीछे जाते हैं. Now we are in cylinder. Cylinder I want to explain you properly. देखो ध्यान से. Of course ये मैंने अब properly explain किया, लेकिन यहाँ अच्छी तरह से थोड़ा इंटरेस्टिंग है सिचुएशन. अगर मैंने आपको बोला चलो एक सिलेंडर बनाओ, तो आप क्या करोगे? You will take a page, a rectangular page. तो मैंने ये पेज ले लिया, देखो यहाँ. ये मैंने पेज ले लिया. A rectangular page has what? Length and breadth. तो ये हो गया मेरा लेंथ और ये हो गया मेरा ब्रेथ. अभी इसको मैं फोल्ड कर रहा हूं, इसको मैं सर फोल्ड करके सिलेंडर बना रहा हूं. सो नाउ आई मेक अ सिलेंडर आउट ऑफ दिस. मेरा ये सिलेंडर बन गया. Okay, now I made a cylinder from this. तो ये क्या हो गया? Now ये है सिलेंडर का हाइट, ये, और ये तो ब्रेथ तो लेंथ तो है नहीं, तो ये हो गया रेडियस. एक्चुअली क्या हो गया? अंडरस्टैंड. the breadth is getting converted into height. So this B is now nothing but H. And this L जो है वो कर्व सरफेस हो गया. So this L is nothing but 2 pi r. Right? अभी what is area of the vertical face of a cylinder? It will be area of a rectangle. बराबर ना ये? It is nothing but L into B. But what is L? L is 2 pi r. And B is H. So vertical face, surface area of a cylinder, total surface यानी surface curved surface area SC हम ले लेते हैं. Okay, vertical face SC curved surface area of a cylinder will be 2 pi r H. Total surface area and curved surface area of cylinder. Curved surface area तो मैं लिख ले रहा हूं यहाँ भी 2 pi r h. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो सरफेस, ये जो कर्व सरफेस एरिया, दिस नथिंग बट SC. याद रखिए ये है SC. राइट, हमने कहा प्लस क्या होगा? प्लस ये ढक्कन सर्कल है, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर. और ये बेस, ये भी सर्कल है, ये पाई आर. तो ये क्या होगा आपका? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर.
कॉमन निकालो, 2 पाई आर कॉमन है, देखो यहां भी और यहां भी, एक आर अलग है, तो यह होगा h प्लस आर। इन शॉर्ट 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस h। तो टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस h। यहां खत्म नहीं होता, कभी कोई ट्विस्ट कर देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। समझो उन्होंने आपको एक सिलेंडर दिया, तो सिलेंडर दिया है तो क्लोज द सिलेंडर, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस हम फाइंड कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि उसका ढक्कन नहीं है, भाई आपके पास एक ड्रम है, उसमें पानी भरा है, कुछ भी हो, पेट्रोल है, पानी है, स्पिरिट है, जो भी हो, लेकिन उसका ढक्कन नहीं है, अब प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इसका कर्व सरफेस या टोटल सरफेस निकालना है तो अलग हो जाएगा। अभी अगर इसका ढक्कन नहीं है तो ये निकल जाएगा एक, तो उसका क्या रहेगा, उसका जब टोटल सरफेस एरिया करोगे समझो इसका ढक्कन नहीं है ना, सिलेंडर without lid, then ST total surface area will be curved surface area plus base area. So it will be 2 pi r h plus simply pi r square. तो ये क्या होगा, pi r कॉमन है, 2h plus r, ये है उसका r plus 2h. So without lid, SC of cylinder will be pi r into r plus 2h. याद रखो इसको, without lid. अब वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट, याद रखो वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, किसी का भी एरिया ऑफ द बेस निकालो मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या है, ये सर्कल है, सो एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी और एक बात बोलना भूल गया, वो क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम में वो सिलेंडर नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने अभी तो सिलेंडर की बात की थी। इफ दे से राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब क्या हुआ, तो वापस मैं आपको बताता हूं। देखो समझो ये सिलेंडर है, ये उसका टॉप है और ये उसका बेस है, ढक्कन और ये नीचे का बेस। देखो द टॉप एंड द लिड एंड द बेस, दे आर अ सर्कल एंड दे आर इन डिफरेंट प्लेन। बोथ लिड एंड द बेस आर इन डिफरेंट प्लेन। वो ये प्लेन है, मेरे दो हाथ ओके प्लेन है। अब जो सेंटर है, इसका सेंटर, दिस सेंटर of the lid and this center of the base, they are connected. ध्यान दो, these centers of both are connected. इसको हम बोलते हैं एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एक्सिस बिकॉज ये सेंटर है, वो एक्सिस है और उसके अराउंड है। जैसे हमारे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अराउंड हमारी बॉडी के सब मसल्स है नाम, वैसे आपका जो सिलेंडर है उसका एक एक्सिस है, उसके पूरे सराउंडिंग में सिलेंडर का जो आउटर पार्ट है, ओके, सर्कुलर पार्ट। अब प्लीज सी दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस
of the base and perpendicular to the radius of the lid. ओके अभी और एक इसमें थोड़ा सा इतना समझ लो। ये तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, और इसलिए इसको कहते हैं राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। ये उसकी वजह है, बिकॉज द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक और छोटी सी बात आपको बताने, कभी कभी जो सिलेंडर होता है ना, कभी कभी आपने बाथरूम में आप देखा होगा कि आपके पास बकेट होती है, प्लास्टिक की बकेट हो कभी कभी होती है, या कभी कभी बस मेटल की, एल्यूमिनियम की या स्टील की बकेट होती है। उसका ध्यान देखो, उसका जो बेस है ना, बेस वो छोटा होता है सर्कल, और जो मुंह होता है उसका टॉप होता है, और अब ऊपरा हिस्सा वो बड़ा होता है। अ सिलेंडर कैन बी ऑफ दिस टाइप ऑल्सो। अच्छा, तो ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर ही हुआ, सिर्फ इतना, ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर ही हुआ। सिर्फ हमें ध्यान देना है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर, एंड कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये बकेट की तरह है। okay? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो रेडियस ध्यान की तरफ, मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द रेडियस ऑफ द बेस एंड द लिड। उस हिसाब से आपका ये फॉर्मूले में बदलाव होगा। समझ गए ना। अगर फिर चलो बता देता हूं, इसमें क्या होगा इसमें टोटल सरफेस एरिया जो है वो आएगा कर्व सरफेस एरिया। अभी कर्व सरफेस एरिया यहां बदल गया आपका, याद रखना। तो आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस। ये कोन माइनस कोन हम लोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बाद में ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको बढ़ाना है। और हमें ये कोन होगा, ये एल होगा, ये स्मॉल आर है, ये एच होगा हाइट। और देन यू टू फाइंड, अगर इसका सरफेस एरिया फाइंड करें तो ये कोन का सरफेस एरिया माइनस ये छोटा कोन का सरफेस एरिया, ओके, माइनस करो। वॉल्यूम भी ऐसा ही, टोटल सरफेस एरिया भी और कर्व सरफेस एरिया भी, मतलब कोन का निकालना पड़ेगा, और कोन से बिगर कोन माइनस स्मॉलर कोन करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया हो, आपका क्या बोलते हैं उसका, सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो। अभी कोन का कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। अभी राइट सर्कुलर कोन, अगेन द वर्ड इज नाउ राइट सर्कुलर कोन। तो वैसे ही है, वह एक्सिस है, परपेंडिकुलर रेडियस है, तो वो राइट हो गया। अब कोन आते हैं। कोन को समझने के लिए ये सिलेंडर है, ध्यान से देखो, दिस इज सिलेंडर। व्हाट इज अ कोन, ये एक्सिस है और ये सेंटर है। इस पॉइंट से अगर मैं यहां को ज्वाइन करता हूं तो प्लीज सी, दिस सिलेंडर गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 कोन्स, 1 2 3। इसको घुमाओगे तो ये भी कोन मिलेगा, ये घुमाओगे तो ये भी कोन मिलेगा। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसका जो वॉल्यूम होगा विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस। इसलिए वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मैं पहले लास्ट में जा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया के पहले बाद में लेते हैं, पहले एल बाद में फाइंड करना पड़ेगा, बाद में एक्स टी एस सी, और ये वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम लेता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन is 1/3 volume of cylinder,
of which it is a part. So it is 1 upon 2 pi r square h. तो वॉल्यूम तो हमें पता चला. अभी आते हैं हम लोग कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया. तो पहला हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. अब कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भाई? अब ये कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? इसके लिए यू नो दिस इज आर, दिस विल बी आर रेडियस. यहां से ये ज्वाइन करते हैं तो ये होगा आपका हाइट. दिस विल बी हाइट ऑफ अ, और ये है स्लैंट हाइट. दिस इज स्लैंट हाइट. नाउ ये पाइथागोरस थ्योरम से करना पड़ेगा. जो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. याद रखें. So curved surface area is curved surface area of the cylinder will be pi r l, pi r into l. ये कैसे आए बाद में बताता हूं मैं आपको. अब एस टी लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा. इट विल बी एस सी प्लस, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल पाई आर स्क्वायर. सो एस सी कितना है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर कॉमन निकालो, सो आर प्लस एल हो जाएगा. सो टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई आर into r plus. Okay, now we have to understand cone. See, let me explain you. Suppose this is a cone. Then this is the base of a cone, this will be the radius. This is perpendicular height. Perpendicular means 90 degree height. This perpendicular means it is the angle formed by the height with the radius is 90. So this is h, perpendicular height, and this is l. L means slant height. L means slant height. Now here you can use Pythagoras because this is a right angle triangle. We can say AOB is a right angle triangle. So we can say this is AB. Angle AOB is equal to 90 degrees. Therefore AB square equal to AO square plus OBE square. What is AB? It is L square equal to H square plus R square. Remember, this is the formula for the slant height. Now, if you want to find the total surface area of the cone, then it has to be total surface area of the cone will be area of the base plus area of the curved portion. This curved portion. Now, area of the base, you know it is area of the base, it's a circle, so it is pi r square. And curved surface area, SC. What is SC? SC is nothing but pi r L, this formula. So you get total surface area is, you can see, pi r common, r plus L. And what is the volume? Volume is 1/3 volume of volume of cylinder.
So it is 1/3. And what is the volume of cylinder? Pi r square h. 1/3 वॉल्यूम ऑफ अ। अगर इसको हम लोग ऐसे इमेजिन करते ना सिलेंडर को, so there is one part, second part and third part. 1/3 of a cylinder. Okay, now we go to the next part. We come to the sphere. Fifth. For sphere, we get curved surface area is 4 pi r. Curved surface area means SC. Curved surface is 4 pi r square h. 4 pi r h नहीं होगा, हाइट नहीं है. 4 pi r square. Total surface area, sir, ST. So total surface area, कर्व सरफेस एरिया मतलब ही टोटल सरफेस एरिया. स्फीयर मतलब एक बॉल का टोटल सरफेस एरिया, और मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है. हेमिस्फीयर हो जाएगा अगर आधा होगा तो. और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. और अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखेंगे. 6 इज curve surface area of the hemisphere. Curve surface area of the hemisphere is इसका आधा, क्योंकि कट बॉल को आधा कर दो तो 2 कर्व सरफेस एरिया. ओके, टोटल सरफेस 3 हो जाएगा ना. हाँ, कर्व इसका आधा हो जाएगा. कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. अगर इसका टोटल सरफेस लो तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का बेस वो भी पाई आर स्क्वायर है. सो 3 पाई आर स्क्वायर. और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इसका हम लोग वॉल्यूम लेंगे तो इट इज 2/3. इसका आधा 2/3, बिकॉज स्फीयर का वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर है. पाई आर क्यूब. ये हमें फॉर्मूले लगने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके, इन दिस एग्जाम, सॉरी इन दिस चैप्टर. अभी और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो प्रॉब्लम्स आएंगे तब उसमें हम लोग कर लेते हैं. विल सॉल्व इन द प्रॉब्लम. सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Find the volume of a cone if radius of its base. Cone दिया है, उसका base का radius of the base is 1.5 centimeter and perpendicular height is 5 centimeter. Now imagine करो, ये आपका cone है. मैं इसे जानबूझ के कर रहा हूं. ये है इसका परपेंडिकुलर हाइट, ये उसका रेडियस है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द रेडियस? उन्होंने वॉल्यूम पूछा है. सो प्रैक्टिस सेट 7.1. Question 1, solution. Radius of base of cone equal to r.
Okay. Now what they are given us? R is equal to 1.5. R equal to 1.5 centimeter. They are given us perpendicular height also. Perpendicular height of cone. कितना है भाई? 5 centimeter. So this they are given us as 1.5 centimeter. This is as 5 centimeter. What they ask you? Volume. Volume of cone. What is volume of a cone? 1/3, half, 1/3 pi r square h. 1/3. ये pi की वैल्यू क्या लें? See, I generally tell you, अगर R देखो, R एंड H ना, R और H जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन में है, अगर उसकी R की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 7 ना हो, जैसे 7, 3.5, 10.5 या मल्टीपल ऑफ 7 या 3.5 जो 7 से डिविजिबल हो, तो ही then only you take 22/7. Otherwise you take 3.14. दूसरा, और मतलब अगर जिनको डिवीजन या जो एवरेज बच्चे हैं या थोड़े से नीचे एवरेज है, जिसको डिवीजन में थोड़ा गड़बड़ होती है, तो आई टेक 3.14 लेके चलो, बिकॉज दे आर नॉट मेंशन हियर व्हाट वैल्यू यू शुड टेक, वेदर यू टेक 3.14 और 22/7. अगर मेंशन नहीं है तो 22/7 ही लेना है. लेकिन अगर कैलकुलेशन में आपको तकलीफ होने वाली है, अगर आप नहीं सर डिवीजन तकलीफ होती है, तो ये टेक 3.14 सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं पड़ेगा. देखो जनरली मार्क्स नहीं काटते. मार्क्स कब काटे जाएंगे मालूम है? अगर आपको 100% फुल मार्क्स मिलने वाले, मतलब 40 मार्क का अलजेब्रा का पेपर है आपका और 40 में 40 आपको मिल रहा है, देन हो सकता है कोई पागल टीचर होगा जो इस बात पे ध्यान देगा. अदरवाइज नहीं, यू कैन टेक आइदर 22/7 और 3. लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ और मैं हमेशा अपनी टीचिंग में बच्चों को बोलता हूँ, अगर मेंशन नहीं किया है, इफ पाई वैल्यू इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, यूज 22/7, तो आपको 22/7 ही लेना है, बिकॉज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू डिवाइड और उसके मार्क्स याद रखो. लेकिन अगर आपको डिवीजन नहीं आता, तकलीफ है, टेबल सा कमजोर है, तो 3.14 लो और मल्टीप्लाई करो. ओके, चॉइस इज योर्स. लेकिन मैं बोलूंगा अगर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7, तो यहां मेंशन नहीं है तो आई एम टेकिंग 22/7. 22/7. आर की वैल्यू कितनी है? 1.5 स्क्वायर, मतलब 2 बार 1. एंड एच की वैल्यू है 5. तो ये देखो कितना होगा, 3 1 3 5. तो अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है. 22 इंटू 0.5 विल बी 11 इंटू 15 5 75, तो ये आएगा 7.5. ओके, अपॉन 7. अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बोलता हूँ. ये 77.5 मतलब 75 पकड़ो. 75 इंटू 11 को मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ 75 लिखो और बस 7 के नीचे 5 और आगे 7 स्क्वायर करो, ये हो जाता है. और डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है, तो इट विल बी 82.5 अपॉन 7. अब यहां डिवीजन आएगा, याद रखो यहां डिवीजन आ गया. अब यहां बच्चों गड़बड़ कर देते हैं और योर टीचर, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, योर एग्जामिनर इंसिस्ट कि यू यूज 22/7 और डिवीजन के वो मार्क्स देगा. लेकिन अगर कुछ 3.14 लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. तो अभी 82.5 डिवाइड बाय 7 करते हैं. तो 7 1 7 माइनस करो, 8 - 7 1, तो नीचे लाओ. 7 1 वापस 7,
7 टू 14 होता है, 14 इज मोर देन 12 तो नहीं जाएगा। 7 और 7 तो माइनस करो तो आएगा 5। ये डेसिमल पॉइंट है, लिख दिया अभी, 5 नीचे आएगा। 7 7 49, 6 0 ले लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन डेसिमल पॉइंट। सो 7 8 56, 7 5 35 एंड सो ऑन। वापस 7 7 49, तो इसका मतलब ये आएगा आपको 11.785 डॉलर। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये ऐसे लिखो, और यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 11 पॉइंट। इसको राउंड अप करो, और ये इसके बाद 5 है ना, 8 के बाद क्या है 5 है, इसको हमें ये 5 हमको नहीं चाहिए। तो इफ दिस नंबर जो थर्ड डिजिट है वो 4 से आगे मतलब 5 6 7 होगा, तो इसको निकाल देंगे और +1 कर देंगे, तो ये होगा आपका 79 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो यूनिट्स। अगर ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ ऐड कुछ नहीं करना है, 11.78 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर हो गया, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां लिखना है आपको, भूल गया बोलने को, अप्रॉक्स लिखो तो भी चलेगा, अप्रॉक्सीमेट। ओके, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आपको ये फॉर्मूला देख के पता चलेगा हमें कौन से फॉर्मूला लेने हैं। और बार बार देखने से व्हेन यू वॉच अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, ये बाहर भी हो जाएगा आपको देख देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the volume of a sphere of diameter 6 centimeter. Find the volume of a sphere. Volume of a sphere का फॉर्मूला लिखो। Volume of a sphere ये है, हमें 4/3 pi r क्यूब का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें डायमीटर दिया है। यू नो वेरी वेल दैट रेडियस जो रेडियस है, याद रखो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, ये सॉल्यूशन। हाउ टू स्टार्ट? डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर आर, सॉरी डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है उन्होंने? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर? 6 सेंटीमीटर। उन्होंने डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया है 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या होगा? रेडियस आर विल बी 6/2, इट विल बी 3 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 pi r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है 4/, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r क्यूब। सो ये आएगा 4/3। अब आप लोग बोलोगे सर आप यहाँ क्या लेने वाले हो? तो यहाँ हम 22/7 ही लेंगे। 22/7 या 3.1 ले सकते हो। मैं 3.1 ले करता हूँ। एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पाई वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इसके बाद हम लोग नहीं दिया तो 22/7 ही लेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल है तो 7 लेने वाला हूँ या तो।
मतलब 20/7 दूंगा। तो ये 3.14 जानबूझ के मैं ले रहा हूँ ताकि आपको इसका भी पता चले कि हाउ फास्ट वी कैन डू इट अगर आपका ये होता है तो ये आएगा आपका 3 9 9 9 से 27 27 इंटू 4। अच्छा 3.14 इंटू 4 लो, ये 4 4 16, 4 4 5 4 12 12.56। तो यह आता है आपका 12.56 इंटू 3 9 9 3 27/3 बराबर है। अब ये ऐसा करो, या और एक तरीका है, इसको 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करो और ये चला जाएगा। देखो तो ये लफड़ा ही नहीं, सीधा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 9 6 54, 9 5 45 प्लस 5 50, 9 2 18 23, 9 1 9 10 11। आंसर आता है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर लिखो फाइनल, ये पूरा वर्ड लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मल्टीप्लिकेशन में कितना फास्ट हो जाता है। Now we are in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ST पूछा है। सिलेंडर total surface area 2 pi r into r plus h. If the volume, अभी इंटरेस्टिंग है, उन्हें दिया है find the total surface area of cylinder if the radius of its base is 5, मतलब r 5 सेंटीमीटर है and h is 40 सेंटीमीटर। कितना इजी है देखो, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूलाज में, सबसे इजी चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। उन्होंने हमें क्या दिया है, radius of a base of a cylinder, radius of base of cylinder। हाँ एक बात यहाँ एक फॉर्मूला और आपको मुझे देना है। ये कभी कभी टीचर्स भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है उन्हें, आपको एक सिलेंडर दिया है, तब ध्यान देखो ये जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है ना भाई, ये क्या है आप समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा इसको बाजू में रखते हैं पहले, या इसको करते हैं उसके बाद आते हैं। चलो इसको करते हैं उसके बाद आते हैं। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज आर। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर एच निकल से 40 सेंटीमीटर है, राइट 40 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहां मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं, समझो। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपने देखा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्लीज अंडरस्टैंड। व्हेन आई से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हियर आई एज्यूम, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने एज्यूम किया है कि समझो ये सिलेंडर है तो इसका बेस भी है और इसको ढक्कन भी है। ओके जैसे देखो इस फॉर्मूला को, ST का मतलब क्या है, इसको ओपन करो, ये 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। 2 पाई r स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस
प्लस कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज एससी, वो तो अनचेंज रहेगा। लेकिन ये देखो, ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस मतलब ये जो नीचे का सर्कल प्लस ऊपर का ढक्कन, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है जो अभी मैंने यहां लिखा है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर है। समझा? क्लोज मतलब नीचे भी उसका, नीचे क्लोज होना ही है सिलेंडर को, लेकिन ऊपर भी बंद है, वो ढक्कन है उसको। ओके, अब एग्जामिनर में उन्होंने दिया फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ओपन सिलेंडर। इसका मतलब इसको ढक्कन नहीं है तो हाँ, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। वो होगा ST प्लस एरिया ऑफ द सिर्फ एक सिंगल बेस प्लस SC। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये पाई आर कॉमन निकला, तो ये होगा R प्लस 2H। याद रखो, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर होगा। ओके, तो इसको, ये हमें क्लोज सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, समझे ना? तो ध्यान रखो, ये कहीं लिख लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं अभी। ना हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब हम क्लोज सिलेंडर की बात कर रहे हैं। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सो ये 2 इंटू, देखो ये 22/7 में नहीं ले रहा हूं इसमें, बिकॉज जो आर है और एच है वो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि बच्चे वो डिवीजन में इन्वॉल्व हो जाए। सो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, चिंता सॉरी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। 3.14 लेके करो, इजी पड़ेगा। 3.14 इंटू 5 इंटू 5 प्लस एच इज 40। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 इंटू 2 तो होगा 10 इंटू 3.14 इंटू 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 31.4, सिर्फ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, इंटू 45। अभी मल्टीप्लाई करना है प्रॉपरली। 31.4 इंटू 45, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15। अब 4 से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 0 13 11, ये डेसिमल पॉइंट। तो आंसर आता है 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम स्क्वायर। सो देयरफॉर आंसर लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। उन्होंने सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं। हुज रेडियस इज आई थिंक 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिया है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 7.1. Practice set 7.1. What is the question? The question says find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. They are given us radius is 7 centimeter and asked you to find the surface area of the sphere. So, solution. Radius of sphere R is 7 centimeter. What is the radius of the sphere? 7 centimeter. They ask us
surface area of the sphere. Okay, so let's find out surface area of the sphere. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. पूरा सर्कल है, ओके, 2 टाइम्स आता है, तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो यहां पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे बिकॉज आर इज 7. सो 4 इंटू 22/7 इंटू ये आर 7 है तो 2 बार 7 आएगा, तो 1 बार चला गया, तो क्या बचा है 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14, 115, 154. So 4 into 154, 4 4 16, 1 carry, 4 5 20, 21, 2 carry, 4 1 4 6, 4 plus 2, 4 1 4 plus 2 6. ये है आपका सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट ऑन फाइनल आंसर. Therefore, surface area of sphere is 616 centimeter square. Now go to question number 5. Let's see what is the question number 5. Question number 5 says, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? स्टार्ट फ्रॉम हियर. द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड में ड्रॉ करूंगा बोर्ड पे. आर 44 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 44, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर. इफ इट इज मेल्टेड, मतलब उसको पिघल दिया मेल्टेड, एंड अ कोन, उसका मैंने कोन बनाया बाद में. ये सॉलिड फिगर्स है. कोन ऑफ हाइट इज 24 सेंटीमीटर इज मेड. फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस. देखो, whenever they say melted, ओके, कोई भी चीज उन्होंने मेल्ट की और शेप बदल दिया. शेप बदलने के बाद याद रखो, यू हैव टेक वॉल्यूम. डोंट टेक सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, कोई मायने नहीं रखता. इट हैज टू बी वॉल्यूम. एक का वॉल्यूम पिघल के, जो पिघलने के बाद बचता क्या है? वॉल्यूम. उस वॉल्यूम से दूसरा शेप दे दिया. सो यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड मालूम है कैसे शेप का होता है. इट इज लाइक दिस. तो उन्होंने दिया है लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 44, ये एल इज 44, ये जो अपना बी है, बी इज 21 एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर्स. अब उन्होंने उसको मेल्ट करके कोन बनाया है. गॉट अ कोन. उसका जो हाइट है h1, हाइट इज गिवन टू यू. रेडियस जो है वो हमें फाइंड करना है. व्हाट इज द हाइट ऑफ अ कोन गिवन टू यू? हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर. तो याद रखो, इसको मेल्ट करके, ये क्यूबॉइड को मेल्ट करके मैंने कोन बनाया. तो वॉल्यूम ऑफ बोथ विल बी इक्वल. इक्वेट करना है और रेडियस मिल जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर क्यूबॉइड,
length L equal to 44 centimeters, breadth B equal to 21 centimeter, height H equal to 12 centimeter. Therefore, volume of cuboid का फॉर्मूला क्या है? L into B into H. तो सब्स्टिट्यूट करो, इट इज 44 into 21 into 12 सेंटीमीटर क्यूब. मैं ऐसे रहता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई, क्योंकि बाद में डिवाइड करना है अपने को. नाउ फॉर कोन, लेट रेडियस इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन मार्क है. हाइट of cone is H1, that is 24 centimeter. Therefore, volume of cone कितना है? It is 1/3 pi r square H1. फॉर्मूला याद रखो, 1/3 pi r square H. Since फ्रॉम डेटा लिखो तो चलेगा. फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर H1, और ये है अपना L into B into H. L into B into H. अभी सब्स्टिट्यूट करो, ये आएगा आपका 1/3. R की वैल्यू वहाँ 24 है, R फाइंड करना, ये चलेगा. 22/7 विल डू. 22/7 इंटू R हमें फाइंड करना है. H इज 24. L की वैल्यू है 44 इंटू 21 and 12. 21 and 12. So 3 देखो, 3 8s are. Okay. Therefore, what will be R square? R square will be 44 into 21 into 12 whole upon into 7. भूलो मत, 7 ऊपर जाएगा. नीचे क्या होगा? 22 into 8. Okay. तो ये आएगा 4, अच्छा 22 1s are 22, 2s are 2 1s are 2, 4s are 4 1s are 4, 3s are. So we get R square equal to 21 into 21. Therefore, taking square root on both sides, हमें क्या मिलेगा? R equal to 21 centimeter. Final answer. Therefore, radius of cone is 21 centimeters. सिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 now. नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है अभी. We just found क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन मिला 5 का. 6 है. ऑब्जर्व दे आर गिवन अस कॉनिकल वाटर जग दिया हुआ है और वो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट दिया है. ऑब्जर्व द मेजरमेंट्स ऑफ पॉट्स इन द फिगर.
7.10 and 7.2. How many jugs of water can the cylinder pot hold? Kitna? How many jugs means, please understand, how many jugs full of water, मतलब कितना पानी भर के उसमें जाएगा. Again volume, because we are talking about volume of silicone and volume of the conical jug and volume of a cylinder. तो दोनों का volume लिखना पड़ेगा. So number of jugs will be volume of a cylindrical tank, pot जो भी है, upon volume of conical jug. तो लिखते हैं, चलो. Question number 6. Solution. पहले लेते हैं for conical jug. पहले conical jug का सब डिटेल्स हम लोग फिल कर दें. क्या दिया है उन्होंने? रेडियस. रेडियस कितना दिया है उन्होंने? 3.5 मिलीमीटर है. centimeters. ध्यान से read the question carefully while solving the problems in the exam. Now we have height. Height of cone. इसको h लेते हैं. It's 10 centimeter. दिया हुआ है उन्होंने. Okay. Now we are going for cylindrical. For cylindrical pot. इसका क्या है? रेडियस. इसको R1 लेते हैं और इसका हाइट H1 लेते हैं. ओके. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ cylindrical pot? ये 7 सेंटीमीटर है. दे आर गिवन अस. एंड इसका हाइट भी इससे मिल रहे. बोथ हाइट ऑफ बोथ आर सेम. नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमें फॉर्मूला लिखना है. फ्रॉम गिवन कंडीशन नंबर ऑफ क्या पूछा उन्होंने? How many jugs of water? Number of jugs of water can be a number of jug of water will be volume of cylindrical pot upon volume of conical jug. So volume of cylindrical pot, volume of cylinder क्या है? Pi r square h. तो यह आएगा आपका pi r1, क्योंकि 1 लिखा हमने, स्क्वायर h1 अपॉन. यह आएगा आपका कोनिकल. कोन इज 1/3. सो 1/3 इंटू पाई r square h. देखो पाई कैंसिल हो जाएगा. 1 अप डिवीजन ऑफ डिवीजन ऊपर जाएगा 3. व्हाट इज R1? 2 बार 7 इंटू 7. H इज 10. पाई वैसे भी कैंसिल हो गया है. सो R इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू ये भी 10 है. सो दिस 10 गेट कैंसल आउट. यह आएगा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 3.5 2 जा 7. सो ये आता है आपका 3 4 जा 12. ओके. सो फाइनल आंसर, द cylindrical pot can hold, therefore the cylindrical pot can hold 12 jugs of
वाटर। ये आ गया आपका आंसर। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। दिस चैप्टर, ये जो लेसन है मेंसुरेशन, दिस प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो, प्रैक्टिस करो रेगुलरली। एकदम नींद से उठने के बाद में पूछे तो आना चाहिए। वंस यू डू दैट, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, गेट द आंसर। और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, कहाँ मेल्टिंग है क्या सब। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? अ कोनी, अ सिलिंड्रिकल एंड अ कोन, अच्छा, हैव इक्वल बेसिस। ध्यान से देखो, और फिगर देखो, फिगर भी क्या है, मतलब मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा आई विल ऑल्सो एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। A cylinder and a cone have equal base. इसका मतलब ये जो रेडियस है ना, दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज सेम, बिकॉज उनका एरिया सेम है। एरिया ऑफ द बेस सेम है। बेस सेम है तो मतलब एरिया ऑफ द बेस सेम है। और वो सर्कल है, याद रखो। If you see the area of the base, यहाँ सर्कल है, तो ये एरिया, सर्कल का एरिया सेम है। Now, the height of a cylinder is 3 सेंटीमीटर। चलो हाइट ले लेते हैं, इसको h लेते हैं। ये आपका 3 सेंटीमीटर है हाइट। And the area of the base is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बेस एरिया है ना, ये एरिया नीचे का, ये 100 cm स्क्वायर है। तो ये 100 सेंटीमीटर, तो ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उससे अपने को रेडियस मिल जाएगा। नाउ कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, और सिलेंडर के ऊपर कोन है। देखो यहां वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर, पूरा फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है टोटल, दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। हमें पूरा हाइट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड एंटायर हाइट। इसको हम कैपिटल H लेते हैं। ये हमें फाइंड करना है। तो ये रेडियस सेम होगा। ये हाइट क्या होगा? दिस हाइट हम लोग लेते हैं h1। r इज द सेम फॉर बोथ। ये जो हाइट है ये h है। सो टोटल h विल बी h प्लस h1, h प्लस h1। ओके, अभी हमें उसको फाइंड करना है। हिंट दिया हुआ है, हिंट इज वॉल्यूम। तो दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल दिस एंटायर वॉल्यूम। तो हमें आर मिल जाएगा और एच भी मिल जाएगा। ओके, चलो पहले लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 7 है। यस, क्वेश्चन नंबर 7। सो फॉर सिलेंडर लिखेंगे फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। ये दो हिस्से हैं ना फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट
H 3 centimeter. Area of a base. Area of a base क्या है? Pi r square is 100 centimeter square. ये area of the base. From for cone, for conical part. अभी conical part क्या इंफॉर्मेशन लिख दो. रेडियस r या इसका एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर is 100 centimeter square. Height of cone H1 from given condition एरिया ऑफ बेस, ये यहां लिखो चाहे तो, फ्रॉम गिवन कंडीशन सिंस बोथ स्टैंड ऑन द सेम बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ बोथ कोन एंड cylindrical part is equal to pi r square, that is 100 centimeter square. Therefore, from data total volume of solid equal to volume of conical part plus volume of cylindrical. ये दोनों का पार्ट मिला के टोटल वॉल्यूम होगा. टोटल वॉल्यूम तो हमको दिया है, इट इज 500. Volume of conical part is 1/3 into pi r square into H1. ये conical part का वॉल्यूम हुआ, और volume of a cylindrical part is pi r square into H. So this is nothing but 1500. मैं 3 इस साइड लेके रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3. तो ये आएगा, दिस इज व्हाट इज दिस, पाई आर स्क्वायर. तो मैंने पहले लिखा है पाई आर स्क्वायर इज 100. सो लिखो ये आपका आएगा 100 इंटू H1 प्लस ये 3 होगा 100 इंटू H, ये है 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3. मैंने 3 निकालने के लिए दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया. आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3. तो 3 इंटू 15, 3 इंटू 500 इज 1500. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 चला जाएगा. इसको तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ये H की वैल्यू है 3. ये 100 देखो, तो ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100. तो ये होगा 15 इक्वल टू H1 प्लस 9. 100 के 0 0 चला गया, ये 0 0 चला गया, ये 0 0 चला गया, बचा गया 15, ये H1 और ये 9. So what will be H1? Therefore H1 will be 15 minus 9. So H1 equal to 6 centimeter.
Therefore, total height of solid, that is capital H, equal to H plus H1. So capital H is equal to H कितना है भाई 3 centimeter plus 6 centimeter. So H is equal to 9 centimeter. Answer. 9 centimeter answer है the height of a figure or height of a solid. Therefore, height of given solid is 9 centimeter. टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर रॉन्ग लिखा है, ध्यान रखो. 5 लिखा है, फाइंड ये 9 है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन 8 को पढ़ लेते हैं. इन द फिगर, वापस ये टॉय है, ये इज अ टॉय. उसको देखो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है. ये सिलिंड्रिकल पार्ट है और उसका एक हिस्सा कोनिकल है. वन एंड इज कोन and other end is a sphere, hemisphere, other sphere. Now what they are given us is a toy made up of hemisphere, a cylinder and a cone is shown in the figure. Find the total area of the, find the total area, इसका total area हमें find करना है. उसका जो radius of a cone है ये दिया है आपको 3 सेंटीमीटर. दिस रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर. दिस रेडियस ऑफ अ कोन इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर. हाइट ऑफ अ कोन, ये हाइट है परपेंडिकुलर हाइट, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ये यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट नहीं है, ये 40 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं ना. यस, 40 सेंटीमीटर. और ये रेडियस होगा, वॉट एवर द रेडियस, एक्चुअली दिस हैज टू बी द रेडियस. रेडियस हेमिस्फीयर है ना, तो ये होगा आपका 3 सेंटीमीटर. रेडियस सेम. फाइंड टोटल एरिया ऑफ द टॉय. Find total area of toy. Okay, चालू करते हैं. रिमेंबर, सॉल्यूशन याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं. ये बेस ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड बेस ऑफ अ कोन एंड बेस ऑफ अ सिलेंडर ऑल आर इक्वल. सिंस base of hemisphere, cylinder and cone are equal. Therefore, radius of base of hemisphere, cylinder and cone is equal. Let radius be r centimeters. Therefore, r equal to
3 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखो। सिंस बेस ऑफ अ हेमिस्फीयर, देखो ये हेमिस्फीयर, बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड बेस ऑफ अ कोन, दे आर इक्वल। Hence radius of all these three bases are equal, which is r, which is हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया है ना। हाइट ऑफ अ कोन देखो, हाइट ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज h, यह आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, हाइट आ गया। अभी हमें स्लांट हाइट फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड L, हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, टोटल एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हमें कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना है और हेमिस्फीयर का ऐड करना है, तो हमें मिलेगा। सो हाइट, लेट द स्लांट हाइट of cone be L centimeters. Therefore, L square equal to R square plus H square. So L square, R कितना है भाई? 3 square plus H is 4 square. So L square will be 9 plus 16. So L square will be 25. Taking square root on both sides. So we get L equal to 5 सेंटीमीटर। चलो, अपने को ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। We got slant height। अभी हमें टोटल एरिया ऑफ अ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय फाइंड करना है। टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर plus surface area of hemisphere। सरफेस एरिया कोन आप जानते हो, हमने L क्यों फाइंड किया है? बिकॉज पाई आर एल। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आप जानते हो 2 pi r h। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 pi r h। और हेमिस्फीयर का, स्फीयर का आधा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? 4 pi r स्क्वायर, उसका आधा, तो ये हो गया 2 pi r स्क्वायर। अब देखो सब में कॉमन क्या है? pi एंड r। r कॉमन है, लेकिन चलो बचा क्या अंदर? L प्लस 2h, मैंने पाई आर बाहर निकाला। देखो ये पाई आर इसमें से एक बाहर निकाला, तो मुझे L बचा, ये 2h बचा और यहां प्लस 2r बचा। नाउ पाई एज इट इज, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, r इज 3 सेंटीमीटर। L हमने अभी फाइंड किया, L इज 5 सेंटीमीटर। H is 4, 2 into 3, तो ये आता है पाई इंटू 3, अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस 8 प्लस 6, तो ये पाई इंटू 3 इंटू 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19। नहीं है भाई, यहां हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। इसका हाइट को h1 लेते हैं,
नहीं, कोन नहीं, लिखना पड़ेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम लोग H1 लेते हैं एंड H1 इज 40। तो याद रखो हमने गड़बड़ यहां की, ये H1 है, ये H1 है, तो ये 4 नहीं है, ये 40 है। तो ये आपका हो गया 80। ओके, तो यह आपके हो गया कितना है 1191। सो 3 1s are 3, 3 9s are 20 centimeter square answer. Therefore total surface area of toy is 273 pi centimeter square. You can put the value of pi as 3.14 and get the answer. अगर चाहिए तो, even if you keep it like this, will be okay. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Now please read the question carefully. Question को पढ़ो। The question says, in the figure again, एक टॉफी है, अब ये जो टॉफी है कभी कभी एक टॉफी का रैपर होता है, अंदर गोल टॉफीज होती है, और एक जैसे कि नीचे नीचे ऐसे रिंग टाइप टॉफी मिलती है, देखो शुगर की, वो एक नीचे के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ऐसा कुछ हमारे बचपन में मिलते थी। जैसे हम लोग फ्रिस्बी खेलते थे ना, वो रिंग बचपन में खेलते थे, वैसे ही वो गोल बीच में ऐसे रिंग हुआ करती थी, वाइट कलर की, और इट वॉज उसका फिगर, उसका मेंथॉल रहता था उसमें, ज्यादा ठंडक और मुंह में आती थी। तो वो रिंग थी और वो ऐसे रैपर में, सिलिंड्रिकल रैपर में रैप होता था। सो दैट इज व्हाट दे आस्क्ड यू। उन्होंने क्या पूछा है देखो, a cylindrical, in a figure, a cylindrical wrapper of a flat tablet. Tablet का मतलब टेप, गोली, okay, is shown. The radius of a tablet, radius of a छोटा, radius तो छोटा ही होना चाहिए। तो ये जो रेडियस है ना टैबलेट का, ये टैबलेट का रेडियस है समझो। तो ये R हम लोग लेते हैं 7 mm। उन्होंने दिया रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm एंड थिकनेस इज 5 mm। ये जो थिकनेस है ना, ये इसको H लेते हैं, ये 5 mm है। ये टैबलेट के बारे में बताया था, दिस अबाउट टैबलेट, गोली का रेडियस 7 mm और उसका थिकनेस है 5 mm। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन अ रैपर। अब रैपर का जो रेडियस है, इसका डायमीटर दिया उन्होंने, देखो ये रैपर है ना, उसका जो डायमीटर है D, ये 14 mm है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी 14/2, दैट विल बी 7 mm। इसका रेडियस भी सेम होगा जितना रेडियस ऑफ अ रैपर है, सो रेडियस ऑफ अ टैबलेट है। तो टैबलेट से एग्जैक्ट रैप होके आएगा वो, ओके। तो रेडियस ऑफ अ रैपर, जो सिलिंड्रिकल रैपर है, रैप होने के बाद उसका शेप सिलिंड्रिकल हो जाता है, तो उसका रेडियस और टैबलेट का रेडियस सेम है।
और ये हाइट है, कितनी टैबलेट्स अंदर बैठेगी वो डिपेंड्स है। तो ये हाइट, इसको हम लोग लेते हैं H1 या कैपिटल H लेते हैं, ये कैपिटल H है, ये है आपका मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है हाउ मेनी टैबलेट्स, कितनी टैबलेट्स यहां बैठेंगे। अब देखो बहुत इजी है, दोनों का रेडियस सेम है, बिकॉज वो टैबलेट के ऊपर एग्जैक्ट रैप होता है, इसलिए रेडियस ऑफ हाइट फर्क पड़ेगा। हाइट में क्या है, हाइट ऑफ अ रैपर जो पूरा रैप होने के बाद है वो 10 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ अ टैबलेट इज 5 mm। तो ये सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दो, कितने हो जाएंगे 10 into 10 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 मिलीमीटर, और ये 5 मिलीमीटर है, डिवाइड करो 20 टैबलेट्स आ जाएंगी। ओके चलो, तो ऑफकोर्स यहां हमें क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम ही लेना है, कंपेयरिंग बोथ द वॉल्यूम। सो पहले लेते हैं हम लोग फॉर टैबलेट रेडियस, ये सॉल्यूशन है, रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू 7 मिलीमीटर, हाइट स्मॉल h ये है 5 मिलीमीटर। हमने दोनों का जो क्या बोलते हैं उसको, एक का टैबलेट का हमने लिख दिया हाइट है। अभी आते हैं हम लोग फॉर रैपर, diameter of wrapper 14 mm, therefore radius R1 equal to diameter upon 2, that is 14 mm upon 2, तो ये भी आएगा आपका 7 मिलीमीटर। हाइट ऑफ रैपर, इसको हम लोग कैपिटल H लेते हैं जो हमने वहां लिया है, दिस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 into 10 मिलीमीटर, सिंस 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। तो ये आपका H की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मिलीमीटर। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, नंबर ऑफ tablets will be volume of wrapper upon volume of tablet. तो नंबर ऑफ टैबलेट कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ अ रैपर, अच्छा रैपर क्या है, सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर, आर हमने R1 लिए, R1 स्क्वायर कैपिटल H, और ये भी सिलेंडर ही है, याद रखो दिस ऑल्सो सिलेंड्रिकल पार्ट ओनली, लेकिन ये जो है छोटा हम लोग सिलेंडर लेंगे, छोटा सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल h, आर और h, ओके। सो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना है भाई, हाँ R1 is 7, so 7 into 7 into h, h is 100 upon 7 into 7 into 5, 7 into 7 into 7 can cancel, so n is will be 20. Final answer. So 20 tablets can be placed, no?
20 tablets can be wrapped in a wrapper. Therefore, 20 tablets can be wrapped. Okay, now we go to question number 10. We'll read the question. Look at the figure. The figure is a toy which has a conical part up and hemisphere down. The radius and height. The radius is 3 cm, perpendicular height is 4 centimeter. They are given us pi value as 3.14. Find the volume of the area. It shows the lower part of the hemisphere and the upper part of the cone. Okay. Find the volume and the surface area of toy from the measures given below. See, from this we conclude following things. Since the base of a cone and hemisphere is same, the radius of hemisphere and radius of the base of the cone will be same, so R will be same. H, height of a cone, we know. For curved surface area, we'll have to find L. Now let us proceed. First of all, we are going to write since solution. Base of cone and, remember, base of cone and base of hemisphere. Are same, bracket equal. Therefore, their radius of base is equal. Therefore, R equal to 3 centimeter. Now, height of a cone. Height of cone H 4 centimeter. Now we know height of the cone, we know radius of the cone. So now we have to find slant height. Let slant height of cone be L. Therefore, L square equal to R square plus H square. We know the formula. So L square is 3 the whole square plus 4 the whole square. 9 plus 16. L square is 25. Taking square root on both sides, we get L is equal to 5 centimeters. So, slant height we got, that is 5 centimeters. Now we go to the curved surface area of the toy. Curved
it will be curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cone plus curved surface area of the hemisphere. What is curved surface area of the cone? It is pi RL, and curved surface area of the hemisphere, half of pi R square, half of the surface area of the sphere, that is pi R square. Now please substitute the values and get the answer. Now in this case, please understand pi R is common. So what you get here? L plus 2R. R हम जानते हैं, L हमने कैलकुलेट कर लिया है. तो लिखो 3.14 into 3 into bracket 5 plus 2 into 6, 2 into 3, sorry. So this will be 3.14 into 3 into 11. So we can multiply करो, 3.14 into 3 करो. तो 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9. और क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, इसको सिर्फ तुम 942 आगे लिख दो, 249, 6 13 1 10 और ये 2 डिजिट्स, तो ये आता है आपका 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट यू गॉट. ये अपना कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय है. ओके, नाउ वी वांट टू गो फॉर, उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ अ टॉय. Volume of toy is volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone आप जानते हो 1/3 pi r square h. So ये 1/3 pi r square h. Volume of the hemisphere भी आप फॉर्मूला जानते हो. It is half of the स्फीयर. स्फीयर का फॉर्मूला याद रखो 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका आधा, सो 2/3 पाई आर. अब देखो 1/3 और पाई आर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, तो अंदर बचा h प्लस 2/3 इंटू आर. यह आएगा 3.14. R is 3, so ये 2 बार 3/3, H 4 है, 4 प्लस 2/3 इंटू ये R की वैल्यू 3 है, तो ये 3 3 कैंसल, ये 3 3 कैंसल. ये कितना हो गया? मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, चलेगा. 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9. ये 9.42 into 6 आएगा. So 6 2s are 12, 6 4s are 24 plus 1 25, 6 9s are 54 plus 2 56 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका आंसर है 56 पॉइंट. गड़बड़ की हमने, देखो मैंने 1/3 बाहर निकाला, तो ये प्लीज 2r बचा. सो 2 into 3
6+4 10। तो गलतियां ऐसे मत करो, हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है ध्यान में, इन हेस्ट। तो यह आपका आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 94.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर लिख दो। Therefore, curved surface area of toy is 103.62 centimeter square. Volume of toy is 94.2 centimeter. Okay, we complete this question number 10. Now we go to question number 11. Question number 11 देखो, they are given us a sphere. Find the surface area and volume of a beach ball. तो उन्होंने एक बॉल दिया अपने को, उसका जो डायमीटर है, तो ये सेंटर है, तो ये बीच बॉल का डायमीटर जो है ना, इट इज 42 सेंटीमीटर। So let's start. हमें फाइंड करना है इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, बॉल का सरफेस एरिया, और फिर साथ साथ हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम कितना है, और इसके लिए हमें सिर्फ आर की जरूरत है। डायमीटर दिया हुआ है, आर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 है ये, यस, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। diameter of beach ball कितना है? 42 सेंटीमीटर। Therefore radius small r will be 42/2, 21 सेंटीमीटर। The radius of the beach ball 21 सेंटीमीटर हो गया। Now curved सरफेस एरिया ऑफ बॉल। ये बॉल का मतलब क्या है भाई? बॉल मतलब स्फीयर होता है, ओके। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। सो 4 इंटू, मैं 22/7 ले रहा हूं बिकॉज ये 21 है, सो यू कैन डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करो, 88 इंटू 63। इसको अगर तुम पाई की वैल्यू दी है क्या? नहीं, पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो इसे है दिस। इसको मैं स्प्लिट करता हूं, 11 इंटू 8 इंटू 63 को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। देखो 8 3 24 टू कैरी, 8 6 48 49 50। आप जानते हो 11 से कैसे करना है? 504, और ये छोड़ दो 4 के नीचे, और 0 से वापस, तो 4 का नीचे 4 4 5 5, ये आता है 5544। सो ये आएगा आपका 5544।
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर बदलेगा अगर मैं 3.14 इस्तेमाल किया। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैंने यही इस्तेमाल यहां 3.1 कर दिया, लेकिन मैंने ये 22/7 क्यों लिया, तो परफेक्ट वैल्यू आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम में आपको दे आर नॉट मेंशन ये 3.4 और 22/7, क्योंकि ये मल्टीपल डिवीजन होता है, ये डिविजिबल बाय 7 है, इसमें 23। अगर मैं 3.14 लेता हूं तो सेम देखो, 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर को 21 इंटू 21, द सेम। पाई के बदले मैंने 3.14 लिया, तो 4 4 the 16, $440, 21 स्क्वायर इज 441। चलो लिख लेते हैं 441, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 4 4 the 16, 17, 3.14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा देखो, 1764 इंटू 314। ये मल्टीप्लीकेशन ये फटाफट हो जाता है, इसमें टाइम लगेगा मल्टीप्लीकेशन में। 4 4 the 16, 1 4, 2 24, 25, 2 carry, 4 7 the 28, 29 30, 0 3, 4 the 4 7, यह आएगा 4 6 7 1। उसके बाद 3 से 3 4 the 12, 1 carry, 3 6 the 18 plus 1 19, 1 carry, 3 7 the 21 plus 1 22, 2 carry, 3 1 the 3 4 5। तो यहाँ पर 6 9 8 14 plus 9 is 23, 2 4 5 5, and then put 2 decimal points. तो ये आता है 5538.96 centimeter. See, if I multiply इसको 22/7 के एग्जैक्ट, मैंने आपको वी वर डिस्कसिंग दिस, हम 3.4 लेना या 3.14 लेना है, 22/7 लेना, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। यहां अगर ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन तुमको परफेक्ट एक्यूरेट आंसर चाहिए, कोई टेंशन नहीं डेसिमल पॉइंट का, तो ये 22/7 लो, ये परफेक्ट आंसर है। बिकॉज ये जो 21 है ना, ये डिविजिबल बाय 7 होता है, इसलिए मैंने 22/7 लिया। और ये फास्ट भी हो रहा है, ये 3.1 लेके 3.14 लेके मल्टीप्लीकेशन में लेंदी रहेगा, तो इसको मत लो, ये लो, गो फॉर दिस, टेक पाया 22/7। फाइनल आंसर कुछ पूछा है उन्होंने शायद, ये सुन रहे वॉल्यूम भी पूछा है, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल। वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल आप जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, 4/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 21 है, 7 3s, so it is 88, 441, so 11 into 8 into 441, 8 ones देखो 441 into 8, 8 ones 8 4 32, 35। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 5 3, तो 8 10 8 8 3, तो 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आता है वॉल्यूम का। 3.14 लोगे तो थोड़ा सा बदलेगा, 38,000 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आएगा। फाइनल आंसर लिख लो, फाइनल आंसर लिख लो और हाईलाइट कर दो। लास्ट 12th क्वेश्चन,
उन्होंने दिया है as shown in the figure, a cylindrical glass contains water. A metal sphere of diameter 2 centimeter is already immersed in it. Find the volume of the water. देखो, उन्होंने अपने को एक सिलेंडर दिया है, तो अभी ड्रॉ करते हैं. ये है आपका सिलेंडर. इस सिलेंडर के अंदर पानी दिया, एंड देयर इज वन स्पीयर, एक स्पीयर दिया है. और इंफॉर्मेशन क्या दी है देखो, उन्हें दिया है द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये जो हाइट ऑफ अ सिलेंडर है ये 30 सेंटीमीटर है. In question number 12, see what they are given us. As shown in the figure, cylindrical glass container. It contains water. This is a cylindrical glass contains water. A metal sphere of diameter 2 centimeters immersed in it. Find the volume of a water. I want only volume of a water. Volume of a water can be found out. First we have to find volume of a cylinder with sphere immersed in it. Then you find volume of a sphere. Then we subtract volume of a cylinder along with the sphere immersed in it, minus volume of a sphere. We get volume of a water in the container, cylindrical container. Let's start. So we have height is 30 centimeters, and this is the diameter. So diameter is 14 centimeters from here to here. Okay. So once you have diameter, you can find the radius. Okay. So let us start. Our solution says, क्या बोलेंगे? First we have to see, इसको radius निकालेंगे. Diameter of cylindrical glass. क्या है वो? 14 centimeters. Therefore, radius of glass, it is R equal to diameter upon 2, 7 centimeters. So R is how much? 7 centimeters. R is the radius of a cylindrical glass. Now what is the volume of a water and what is the volume of a water? Water and means volume of the cylinder, ये पूरा cylinder in which volume of अभी इसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया नहीं है. They are not given us information. We assume that it is fully, the cylinder is full, the glass is fully filled with water. So here the volume of water with the cylinder immersed in it we have to find. So here volume of water with sphere immersed in it. Now volume of a cylinder आप जानते हो क्या है? R square H. So मैंने कहा नहीं पूरा भरा हुआ है, पानी है पूरा भरा हुआ है. So it is pi R square H. पाई हम लोग 22/7 लेंगे. रीजन आप जानते हो, बिकॉज R is 7 है. So 22/7 into 7 into 7 into 30. तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा. तो इसको हम लोग 22 को स्प्लिट करते हैं एज यूजुअल मेरी टेक्निक के हिसाब से.
2 और ये 7 3 21, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 420 और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है 420 आगे 420 तो 0264 सो दिस इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इमर्स्ड इन इट, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन विच स्फीयर इज इमर्स्ड। अभी हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ, सिर्फ अभी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें डायमीटर लेंगे जो दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यस। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी r equal to 2/2, that will be 1 centimeter. अब निकालो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आप जानते हो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r। इसको हम लोग फॉर सेफ्टी से r1 लेते हैं तो r दोनों हो जाएगा, इसको भी r1 लेते हैं। चलो सो ये आएगा 4/3। अगर आपको पाई सब्स्टिट्यूट नहीं करो कोई टेंशन नहीं, into 22/7 into 1 into 1 into 1, तो ये हो जाएगा 88/21। डिवाइड करना पड़ेगा भाई। अगर हम लोग पाई सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो भी चलेगा लास्ट में, जैसे बाद में आपको बताऊंगा मैं। 88 और 21 है, 21 4 2 84 आता है, 4 नहीं डेसिमल पॉइंट 0, 21 1 21, ये 19 आएगा, 0 so 9 189 so this is something 4.19 centimeter cube. So volume of water will be, अभी हमें सिर्फ फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैं क्या करूंगा, हमने इसको आई कॉल इट एज V एंड दिस हैज, इसको V1 लेते हैं और इसको V2 लेते हैं, सॉरी इसको V2 लेते हैं। सो दिस विल बी V1 माइनस V2, 4620 माइनस 4.19, 4620.00 4.19, 10 minus 9 1, 9 minus 1 8, 9 minus 4 5, 1 6 4। सो यह आता है आपका 4615.81 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। अगर हम इसमें पाई सब्स्टिट्यूट नहीं करते, कभी कभी क्या करते हैं कुछ महान लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो ये क्या होगा देखो। अगर मैंने अभी ये आंसर आ गया अपना, ये आंसर है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 4615.81 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर। लेकिन समझो अगर मैंने पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, ये थोड़ा सा पाई डालते हैं, कुछ पाई नहीं डालते तो गड़बड़ हो जाता है। पाई नहीं डालेंगे तो क्या हो जाता है, कुछ टीचर डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं, तो ये आंसर क्या हो देखो। पाई ऐसे ही रहे तो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने वाला वैसे डिवाइड या सब्ट्रैक्ट में, तो ये आएगा 7 स्क्वायर इंटू 30, तो ये आएगा 49 इंटू 30 इंटू पाई, तो ये आएगा 0 9 3 27 2 4 12 प्लस 14 पाई। और इसमें भी हम पाई नहीं डालते, और पाई की वैल्यू हम नहीं डालते,
तो 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब। इसमें भी हमने पाई नहीं डाला है, तो ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये आएगा, और इसमें ये सेंटीमीटर क्यूब है, और यहां आ जाएगा देखो 1470 पाई माइनस 1.33 पाई। इसका आंसर क्या होगा? 1470 माइनस 1.33 0.00, 10 माइनस 3 7, ये 9 होगा, 9 माइनस 3 6, ये 9 हो गया, ये 8 6 4 1, ये आएगा 1468.67 पाई, इस 1468.67 सेंटीमीटर। सो मैं दोनों तरीके से आपको बताया, by substituting value or without substituting the value of pi। तो अपना 12th खत्म हो चुका है।